ইসলামিক শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন স্যার সৈয়দ আহমেদ খান। তাই তাকে স্মরণে দ্য মুসলিম ইনস্টিটিউটের তরফ থেকে স্যার সৈয়দ আহমেদ ডে প্রোগ্রাম 17 অক্টোবর 2024 ঠিক 6:30 হাজী মোহাম্মদ মহসিন হলে অনুষ্ঠিত হয় এই সৈয়দ ডে প্রোগ্রাম। স্যার সৈয়দ আহমেদ খান অ্যাওয়ার্ড অব এক্সেলেন্সের তরফ থেকে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এবং বক্তৃতা প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি জাস্টিস রঞ্জিত কুমার বাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ডক্টর অমিত দে, এছাড়া সেক্রেটারি এবং ফাউন্ডার উম্মেদ একাডেমি মিস্টার অলিভার রহমান সহ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। थोड़ा इधर देख लीजिएगा। साजिद खान सर, प्लीज प्रेजेंट द मेमेंटो टू डॉक्टर अमित। इधर देख, इधर। The honorable, the chief guest, honorable Justice R.K. Bag, and I request Dr. Amit Dev to present him the shawl. And ladies and gentlemen present here, my dear students, it's really a great honor and privilege to attend the Sayyid Day program organized by the Education Subcommittee of this Muslim Institute. Sir Sayyid Ahmed Khan is the illustrious educationist who was born more than 200 years ago, but he had the vision of imparting modern education among the Mohammedan community of the country. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसलिए कि डॉक्टर अमित दे है, उन्होंने बोलेंगे ज़्यादा। He has been invited for this purpose to speak on Sir Sayyid Ahmed Khan and his legacy. But I must congratulate the Muslim Institute for organizing the program of today to commemorate Sir Sayyid Ahmed Khan and to pay tribute to him. Sophistication of the Mughal court to the Copernican understanding of the place of the earth in the universe. This is a difficult journey which Sayyid Ahmed Khan had to undertake. And now, traveling is very important in Islam. Miraj is a travel, though it can be interpreted in a philosophical way. Pilgrimage to Hijaz is a travel. Visitation to the Sufi shrine is a travel. Hijrat is a travel. Minor hijrat is a travel. So traveling is very important. And Sir Sayyid Ahmed Khan was also a traveler, not only in the geographical sense, but also in the philosophical sense. We have to explore the convergence between the philosophical, symbolic meaning of traveling and the geographical aspect of traveling. Then we will understand Sir Sayyid Ahmed Khan and his exposure to the modern world. ये बता सकता हूँ कि लीडर वो है जिसके पास विजन है, लीडर वो है जिसके पास विजन है। और आज सर सैयद अहमद ख़ान की 207th बर्थ एनिवर्सरी है, तो अगर आप पलट कर देखें तो सर सैयद अहमद ख़ान लीडर इसलिए हैं क्योंकि उनके पास विजन था। पर क्या सिर्फ विजन हो जाना काफ़ी है आपके लीडर बनने के लिए? नहीं, आपको उसके बाद मेहनत भी करनी होगी और बेलौस मेहनत करनी होगी और आखिरी दम तक मेहनत करनी होगी, बिना थके मेहनत करनी होगी। जिस तरह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला आइशा इल्ला आइशल आखिरा, देयर इज़ नो कंफर्ट एक्सेप्ट द कंफर्ट ऑफ हियर आफ्टर। सो सर सैयद अहमद ख़ान ने इसी बात पे अमल किया और अपनी ज़िंदगी में आराम नहीं किया, इसलिए वो लीडर बन सके। पर अब मेरा सवाल ये है कि जब भी सर सैयद अहमद ख़ान की बात होती है और AMU की बात होती है, तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं वाहिद इंसान कमरे में ऐसा होता हूँ जो लोगों को आईना दिखा रहा होता हूँ, मगर
हमारे डॉक्टर अनीस साहब ने ये काम कर दिया आज माशाल्लाह, इसलिए मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। इंट्रोडक्शन में आपका जिक्र नहीं किया मैं। अक्सर ऐसा होता है कि वाहिद इंसान मैं होता हूँ जो लोगों को आईना दिखा रहा होता है, वरना सारी चीज़ें बड़ी गुडी गुडी हो रही होती हैं कि सर सैयद ने ये किया, सर सैयद ने वो किया, चलिए हम बिरयानी खाते हैं। सर सैयद ने वो किया, सर सैयद ने ये किया, चलिए हम चाप खाते हैं। सर सैयद ने वो किया, सर सैयद ने ये किया, आहा क्या बात है, आइए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो सर सैयद ने जो किया आप क्या कर रहे हैं माशाल्लाह? सर सैयद के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? सैडली आज अलीगढ़ जो है वो क्या है, सर सैयद के बाद फर्स्ट जनरेशन, और डॉक्टर अमित साहब ने मेंशन किया एक किताब या एक समथिंग विच सेड the first generation of Sir Syed, and I would definitely meet you to get hold of all these articles and of all these books where I get to know more about Sir Syed Ahmad Khan. क्योंकि पिछले 6 साल में मैं सिर्फ काम किया हूँ। मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 6 या 7 साल में few members of my team are here. Ghazala ma'am, she's been there with me since first day, और बिना शुबा वो कह सकती है कि शायद उन्होंने पिछले 7 सालों में मुझे किसी एक पल आराम करते हुए देखा होगा। मैं एक दिन की बात नहीं, मैं एक पल की बात कर रहा हूँ, मैं एक पल। और मैं ये विद ऑल ह्यूमिलिटी आई एम सेइंग दिस, और ये दुआ करते हुए कि इसमें रियाकारी ना हो, ताकि अल्लाह नाराज़ ना हो जाए मुझसे और मेरी मेहनतें बेकार ना हो जाए। पर मैं पिछले 7 साल में शायद एक पल होगा जहाँ मैं आराम किया होगा। तो अगर फिजिकल आराम भी है तो मेंटल आराम नहीं था उस वक्त। तो आई हैव बीन स्ट्राइविंग। तो सवाल ये था कि सर सैयद अहमद खान के बाद आज 150 साल हो गए AMU को और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के इस्टेब्लिशमेंट के बाद। आज AMU का हाल ये है कि, और आईना दिखाना होगा, किसी को तो दिखाना होगा, किसी को तो डेविल्स एडवोकेसी करना होगा, वरना हम जो है अपने स्लम्बर में सोते रहेंगे और गुडी गुडी वर्ल्ड में जीते रहेंगे। तो somebody has to become the bad guy. So let me do the honors of being the bad guy today. So with all due respect and all due, with your permission, Saleen Saab, and everybody's permission. So AMU में somebody said, सर सैयद अहमद खान ने कहा कि इसको एशिया का कैम्ब्रिज बनाना है, और मैं कहता हूँ कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, जितने भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईवी लीग कॉलेजेस हैं, वो बनाना है। ठीक है, अच्छी बात है, पर क्या है आज एशिया का कैम्ब्रिज? हाँ, ज़मीन के फैलाई पर अगर मैं बात करूँ, यानी एशिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब तो है, पर व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ AMU टुडे? एक सर सैयद अहमद खान ने एशिया के सबसे बड़ा एजुकेशनल हब बना दिया। उस AMU से पढ़े हुए लाखों लोगों ने हर शहर में एक और AMU नहीं बना पाए, पर हर साल मिलकर बिरयानी ज़रूर खाते हैं।